Definitely there are geographical terms, but that doesn't mean कि सारा कुछ geography and you have to be thorough with geography. It's not a course of geography that you have to do. It's simple terms that are general knowledge. Okay, so we begin with the chapter Journey to the End of the Earth. Now, end of the earth. That is a significant thing. Journey to the end of the earth. तो भाई ये end of the earth क्या है? End of the earth, like we say, there are two ends. One is the beginning, other is the end. Take anything, there are two ends of it, beginning and the end. Similarly, the earth, अब अर्थ तो राउंड है तो उसके दो एंड्स कहाँ से हो जाएंगे? तो हमने ज्योग्राफिकली मान लिया भाई एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है. ऑल ऑफ अस नो दिस. इतनी ज्योग्राफी आएगी बस. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. So North Pole, all of you know where the North Pole is. It's in the ocean which is closer to the north, where the North Pole is the Arctic Ocean. Arctic. अभी Arctic Ocean तो 12th A and B वाले are very thorough with the Arctic Ocean, and 12th C वाले probably थोड़ा उनके दिया if the sciences are here, so they might have just slipped out of their mind कि किधर है ये. तो ये लगा लो भाई ये यूरोप जो है ना, यूरोप का मैप तो याद है, उधर नॉर्वे स्वीडन से ऊपर चले जाओ उधर तो पूरा एक आईसी है सारा. देयर इज इट्स ऑल द ईयर राउंड इट्स कवर्ड विद आइस. सो देयर वी हैव द नॉर्थ पोल इन द आर्कटिक ओशन. इट्स नॉट एन ओशन एग्जैक्टली, इट्स एन ओशन विद आइस कवर्ड ओशन. Okay, and it's important to understand this lesson because it will help you understand a lot of things. Like, this will help you understand environment, the terms which are very common these days, like जैसे कि global warming है, that is increase in the global temperature, environmental changes, okay, rising of the levels of the oceans and the seas. So ये कुछ चीज़ें हैं जो geography नहीं है. These are all general knowledge and we should know them. And here in this chapter we are dealing with these things, so I'm sure it will be very helpful. So I told you end of the earth is North Pole and the South Pole. So North Pole is in the Arctic Ocean, South Pole चले गए बिल्कुल नीचे. Okay, we go downwards. Okay, and tip of South Africa उससे नीचे चले गए, उधर आ जाएगा South Pole. Okay, South Pole, the imaginary South Pole, where we have the Antarctica. Okay, so North and Antarctica. What is special about Antarctica? Many of you must have watched documentaries देखी होंगी आप लोगों ने, और काफ़ी कुछ आपको मुझसे भी ज़्यादा पता होगा एंटार्क्टिका पे. तो थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि एंटार्क्टिका में है क्या. एंटार्क्टिका इज अगेन इट इज़ वन ऑफ, इट्स लाइक द नॉर्थ पोल, कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट डेजर्ट. ओके, it's covered with ice all the year round, and we'll come to know in this chapter it is the coldest, driest, windiest continent. That you should remember these superlatives. समझते हो ना, डिग्रीज हमने क्लास में की थी, गुड, बेटर, बेस्ट. तो सारे सुपरलेटिव्स इसके लिए यूज हो गए. कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट, और सारी खूबियां इसके अंदर ही एंटार्क्टिका के अंदर. तो एंटार्क्टिका भाई कौन सा कंट्री है? Antarctica, it's a continent, and Antarctica is not, there are no countries here. कौन सा कंट्री एंटार्क्टिका में? कोई नहीं. और बहुत सारे कंट्रीज क्लेम करते हैं कि भाई हमारा एंटार्क्टिका, दे हैव सम, बट इट्स कंसिडर इंटरनेशनल. तो वहाँ पर किसी कंट्री का कोई ऐसे नहीं है किसी कंट्री का वहाँ पर कब्जा है, somebody rules over that place. It is like common and research goes on there. अब एक जगह जहाँ पे इतना रिसर्च चल रहा है वहाँ एंटार्क्टिका. ओके, एंड हियर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस चैप्टर? इन दिस चैप्टर वी हैव दिस ऑथर हु इज एन इंडियन एंड शी गोज टू एंटार्क्टिका. फॉर मैनी पीपल गो टू एंटार्क्टिका. मैनी इन द सेंस, ऐसे नहीं जैसे मनाली चले जाते हैं तो एंटार्क्टिका चले जाएंगे, नॉट दैट वे. पीपल ओनली, इट्स द टूरिस्ट्स, and because it is at the other end of the world, so not every tourist can go. You should have a lot of money in your pockets before you go there. And the researchers, scientists, there are scientific bases over there. So that is the significance of Antarctica. That is, Antarctica is a very special place. वो हमें बहुत हेल्प भी करेगा. अभी हमें करता है, कैसे करता है वो चैप्टर में पता चलेगा.
So Tishani Doshi is the name of the author, and she went to Antarctica. Why did she go? How did she happen to go there? All this will come to know. And before you read, it's given, if you want to know more about the planet's past, present, and future. ये मैं book से पढ़ रहा हूँ. Those who have the books can follow. This is a new method I thought of. If you want to know more about the planet's past, present, and future, then Antarctica is the place to go. If you want to know more about the planets, which planet? Our Earth. Present, past, present, and future. So all the three times, past, present, and future, Antarctica is the place to go. So there is only one place जहाँ से आपको अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है. वो जगह कौन सी है? एंटार्क्टिका. सो हैप्पी वॉयज. दैट्स अ फ्रेंच टर्म. Bon voyage, happy voyage. So now what's happening? So Antarctica, as you can follow in the notes in front of the screens, there are these notes, and no need to copy down these notes. कभी आप लग जाएं कॉपी पेंसिल लेके लिखने में, मैं आपको कम से कम तकलीफ देना चाहता हूँ. ये आपको मिल जाएंगे. I'll send the PDF in the group. So you just all your attention on the screens, your mind, your eyes focused on the screen, and your ears concentrating on what I am saying. Okay, listen to that. बस सुनो और देखो with 100% attention. Antarctica is the southernmost continent. Okay, southernmost. Site of the South Pole. Site, SITE, site. एक होता है SIGHT, site. Site मतलब नजर वाला site. वो नहीं है. SIT, site means the place of South Pole. Uninhabited means uninhabited, nobody is living there. It's uninhabited, no human presence, like nobody, like it not inhabited like a typical town or city or village. Ice covered. Okay, ice covered by ice all around the year. Academic Shokalsky. Now, this is the Russian research vessel on board which our author is going to the South Pole. ठीक है, ये वो रशियन वेसल मतलब शिप है जिससे वो जा रही है. शी इज गोइंग टू एंटार्क्टिका, द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट. नाउ यू कैन जस्ट कीप इट इन माइंड. वेरी इजी टू कीप इन माइंड ना, आसान है. देखो, कोल्ड, कोल्डेस्ट हो गया. ड्राइएस्ट हो गया. विंडीएस्ट हो गया. हवा बहुत तेज चलती है, कोल्डेस्ट है. सब 0 डिग्री टेम्परेचर्स होते हैं. ड्राई है, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा वहां. कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ. ओके. And then where did she start her journey from? The journey started from Madras. Where is she going? She is going to the Antarctica. How is she going? She is going by ship. Which is the ship? It is a Russian research vessel. And now when she starts her journey, the journey starts from Madras and on the way. यानी कि रास्ते में क्या होता है? रास्ते में, हाँ, मतलब ऐसे नहीं कोई घटना हुई है, बता रहा है कि रास्ते में मतलब कितना डिस्टेंस, हाउ फार एंटार्क्टिका इज फ्रॉम our place, from India. So first is written on the way. लिखा है point number 1, क्या क्या हुआ रास्ते में on the way. पहली चीज, crossed 9 time zones. 9 time zones cross करने पड़े उसको, right? And what are the time zones? The whole world is divided into 24 time zones. पूरा जो नक्शा है वो डिवाइडेड है 24 टाइम जोन्स में. और तो कैसे हो गया 24 टाइम जोन? तो ईच टाइम जोन जो है ना वो 1 घंटा अपार्ट है. जो आज जो यहाँ पे टाइम है वो टाइम फ्रांस में नहीं होगा. देन वेरी कॉमन थिंग. तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कितने टाइम जोन है. ये तो जस्ट मैंने आई हैव गिवन इट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. वी शुड नो व्हाट आर द टाइम जोन्स. सो क्रॉस 9 टाइम जोन्स मीन्स that there were 9 time zones she had to cross. Second, 3 bodies of water. 3 bodies of water. Bodies मतलब क्या है? Water bodies. What are the water bodies? Oceans, lakes, okay, rivers. All these are the water bodies. So 3 bodies of water means 3 oceans हैं. यहाँ पे lake नहीं है कोई कि उसने किसी lake को पार किया. No. 3 bodies of water are Indian Ocean, Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. Right? तो 3 oceans को क्रॉस करना पड़ा. That long a journey it was. And third is as many ecospheres, and 3 ecospheres she had to cross. Understand? So what I have talked about right now, just now I am talking about
the journey of the author to Antarctica, what all happened, what all in the journey on the way, what happened. She crossed 9 time zones, she crossed 3 bodies of water, और उसने इतने ही इकोस्फीयर क्रॉस किए. ओके, इकोस्फीयर जैसे इकोलॉजी अंडरस्टैंड, तो बायोस्फीयर होता है, ऐसे इकोस्फीयर होता है. तो एनवायरनमेंट जैसे चेंज होता रहता है. तो ये इट इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी. ओके, लॉन्ग जर्नी यू कैन सी. सो वी मूव टू नंबर 2. Second slide you can see in front of you. Duration of the journey. Okay, so before she reaches Antarctica, she has to travel 100 hours. 100 hours. Now you can imagine 100 hours journey. Almost it is like 4 days almost. 4 days and 4 hours. She has been traveling continuously without a break, and the means of the journey are, how does she eat? She travels by all the things, all the means. Car, by road, she travels by road, by air and by water. देख लो, car, aeroplane, ship, तीनों से travel किया उसने. Car, aeroplane, ship. Duration of the journey 100 hours. Okay, so this I have broken up it into points. Probably you will remember it. I hope, I am sure you will remember it easier. अब जब वो पहुंच गए अंटार्कटिका, अपनी मंजिल पर, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई, तो कैसा महसूस हुआ उसको? बड़ा वाजिब सवाल है भाई, कैसा महसूस हुआ होगा उसको जब वो अंटार्कटिका पहुंच गई होगी तो. So it says, by the time I actually set foot on the Antarctic continent. Set foot on, तो कदम रखा उसने अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में. I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. Okay, long journey, long distance. And so my first emotion on reaching Antarctica, facing Antarctica, जैसे उसने कदम रखा अंटार्कटिक की जमीन पर, कैसा महसूस हुआ उसको, क्या जज्बात थे उसके? तो सबसे पहले जज्बा क्या था उसका, फीलिंग जो आया उसके अंदर was, I'll read it from the book. My first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape. ये भी समझना है, ये लिखा नहीं है मैंने, बट समझना है. White landscape. What is a white landscape? Snow covered all around. ठीक है. लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप होता है जैसे आपको नजर आ रहा है ना, जो सीन है वो लैंडस्केप है. वाइट लैंडस्केप, यू गो टू द माउंटेन्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, आप जाएं देखें भाई, बर्फ से ढके हुए, दैट इज द लैंडस्केप इज वाइट. यू गो टू अ डेजर्ट, यू फाइंड डेजर्ट लैंडस्केप. यू गो टू द प्लेन्स, यू फाइंड अ डिफरेंट लैंडस्केप. सो लैंडस्केप जो होता है वो बदलता रहता है, जैसी जगह होगी वैसा लैंडस्केप होगा. माउंटेनियस लैंडस्केप हो सकता है, बीचेस पे जाएंगे वहाँ का अलग लैंडस्केप होगा, सैंडी होगा. डेजर्ट्स में जाएंगे, ड्यून्स होंगे, सैंड होगा, ड्यून्स होंगे. बीचेस पे तो ड्यून्स नहीं होंगे, तो लैंडस्केप अलग होगा, हालांकि सैंड दोनों जगह. तो जब उसने वाइट लैंडस्केप और एक्सपेंसिव, वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड एक्सपेंसिव, यहाँ पर लिखा है EXPANSIVE, और हमें वो भी पता है EXPENSIVE जो बड़ा कॉमन है, एक्सपेंसिव. माई फ्रेंड गिफ्टेड मी एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, तो PEN आ गया. तो ये PEN वेरी कॉमन है, एंड वी आर यूज टू राइटिंग इट. हम आदत है ना हमें एक्सपेंसिव बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, तो यहाँ भी हम लगा देंगे बाय डिफॉल्ट EXPENSIVE, एक्सपेंसिव लैंडस्केप. मतलब बहुत महंगा लैंडस्केप था, तो रॉन्ग हो जाएगा मीनिंग. मतलब एक्सपेंसिव, व्हाट इज द मीनिंग? एक्सपैंड सुने ना, एक्सपैंड, EXPAND, एक्सपैंड, बस समझ लो. एक्सपैंड से बन गया एक्सपेंसिव. एक्सपैंड क्या होता है? फैलाना, मतलब फैला हुआ. यू कैन इन इंग्लिश यू कैन से वाइड स्प्रेड. एज फार एज योर आई कैन सी, जहां तक आपकी नजर देख सकती है वहां तक क्या था? लैंडस्केप कैसा था? वाइट. एक्सपेंसिव लैंडस्केप था, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप था. वाई? बिकॉज ऑफ द स्नो, बिकॉज ऑफ आइस, नॉट स्नो. इट वॉज covered with ice covered landscape, and uninterrupted blue horizon. Uninterrupted, interrupt, uninterrupted means unbroken, not disturbed. Blue horizon, what is horizon? Horizon तो हमें cities में भी, we can't see the horizon. भाई आप देखेंगे अपनी खिड़की से बाहर, आपको दूसरा घर नजर आएगा. कोई देखे अपनी खिड़की से बाहर, उसे दूसरे घर के अंदर क्या हो रहा है ये नजर आ जाएगा.
बट इफ यू गो आउट टू द अनइनहेबिटेड प्लेसेस, आप कहीं जाएं, कहीं ओपन एरिया, cities it's not possible. You go to some village and some other place, so there you will find the expansive landscape and the blue horizon. Okay, horizon समझा रहा था मैं, sorry, there was a disturbance. Okay, horizon is the place where it appears that the sky and the earth are meeting. Got it? ऐसा लगे जहां पर आप देखें और आपको लगे कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, हालांकि हकीकत में तो मिलते नहीं वो. इन रियलिटी दे नेवर मीट. द स्काई एंड द अर्थ, अर्थ इज राउंड, हाउ कैन द स्काई मीट इट? तो मिलेगा नहीं, लेकिन नजर आएगा, ऐसा प्रतीत होगा. हिंदी में क्या कहते हैं उसे? होराइजन को क्षितिज कहते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन. तो वहां उसने देखा वाइट लैंडस्केप एंड ब्लू होराइजन. जब उसने कदम रखा अंटार्कटिका की धरती पर तो उसे ये नजर आया. जब ये नजर आया उसको, तो हाउ डिड शी फील? रिलीफ. यू नो, रिलीफ. योर एग्जाम्स गेट ओवर, व्हाट डू यू फील? रिलीफ, राहत की सांस लेते हैं. सिमिलरली हियर, रिलीफ, शी फेल्ट रिलीफ. नाउ व्हाई डिड शी फील रिलीफ? वेरी ऑब्वियस, एनीबडी कैन आंसर दिस. भाई क्यों? आपने 10 घंटे भी ट्रैवल कर लिया, अब आप पहुंच गए अपनी मंजिल पर, तो क्या आपको महसूस होगा? रिलीफ. ओ, एट लास्ट आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनेशन. दैट काइंड ऑफ फील यू विल गेट फ्रॉम इनसाइड, विच इज अ वेरी कंफर्टिंग फील. रिलीफ. रिलीफ के लिए सिनोनिम हो सकता है रेस्पाइट. RESPITE, रेस्पाइट. You can note it down. I haven't written here, but you can note it down. Relief, respite. Vocabulary is very important because in our RC passage, the reading comprehension passage, we get vocabulary. I guess 3 marks or 2 marks, whatever be the marks, that which is very scoring. लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम vocabulary को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हमारे 2 मार्क्स जो है वो थोड़े डाइसी रहते हैं. आगे पीछे से करते हैं उसको, या वी जस्ट ट्रायल एंड एरर लगाते हैं उसको. आई वॉन्ट यू दैट यू शुड गेट एग्जैक्ट मीनिंग्स. जैसे अब रिलीफ का तुमने सुन लिया ना, रिलीफ का रेस्पाइट हो गया, अ फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड कंफर्ट, रेस्पाइट. तो रिलीफ का सिनोनिम रेस्पाइट हो गया. तो रिलीफ क्यों हुआ? नंबर 1 रीजन देखो यारो, जर्नी ओवर. सिंपल. वाई द जर्नी वॉज ओवर, नंबर 1. नंबर 2, रीच द डेस्टिनेशन. So relief. Journey has come to an end and she has reached the destination. So what is she feeling? Relief. So immediate क्या था? जैसे ही उसने कदम रखा तो पहला फीलिंग क्या आया, पहला इमोशन क्या था उसके अंदर? रिलीफ. ओके. और सेकंड लेटर ऑन, अब रिलीफ हो गया ना, रिलीफ तो ऐसे नहीं रिलीफ ही रिलीफ हो रहा है, अब हुआ प्रोफाउंड वंडर. नाउ व्हाट इज दिस प्रोफाउंड वंडर? प्रोफाउंड इज very deep, profound, like I say, profound emotion. Okay, deep emotions. So profound wonder. What is wonder? Surprise, amazement, आश्चर्य. deep surprise हुआ उसको, बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ उसे, क्या देखकर. followed with an immediate and profound wonder. तो पहले रिलीफ हो गया, उसके बाद followed मतलब उसके पीछे पीछे क्या हुआ? वंडर हुआ. क्या चीज को लेके? वंडर एट इट्स इमेंसिटी. किस चीज पर वो ताज्जुब महसूस कर रही है? Immensity. Immensity of what? Immensity of the place that she has arrived. Immensity of what she sees. जिस जगह पर उसने कदम रखा है और जिस जगह को वो देख रही है, उसकी immensity. What is immense? IMMENSE. Immense means huge, vast, large. Okay, immense. तो अंटार्कटिका कैसा है? कॉन्टिनेंट है, इमेंस है. Immensity. Okay. First, at its immensity. She is feeling surprised at its immensity. Number 2, it's isolation. What is isolation? Isolation is nowadays it is very common. Anybody who's positive is isolated, quarantined. So isolation. What is isolation? Means अलग थलग कर देना, कट ऑफ कर देना. तो isolated है बिल्कुल. अंटार्कटिका जैसे कि हमने कहा बिल्कुल at the end of the earth है, तो isolated है. So it is isolated. वही it does not have any contact with the rest of the land masses. जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का लिंक नहीं है, तो बिल्कुल आइसोलेटेड है. बिकॉज इट इज सो फार अवे,
so it is not affected by what is happening in the world in other way, like other places are affected. तो आइसोलेटेड, दो दो रीजंस पता चल गए हमको उसके कि भाई क्यों उसको महसूस हुआ. इमेंसिटी, वंडर, वन इज इमेंसिटी, सेकंड इज आइसोलेशन. क्लियर? फाइन, वी प्रोसीड नाउ. तो वंडर का एक और another reason why she felt the wonder is mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. वो कह रही है ये दो रीजन तो हैं ही कि भाई बहुत ह्यूज प्लेस है, वास्ट प्लेस है, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स है, राइट, और आइसोलेटेड है. तो दो पॉइंट्स तो ये हो गए बड़े वैलिड. और थर्ड पॉइंट क्या है, जब उसने इस चीज को याद किया, जब उसे ये रियलाइजेशन हुआ दैट देयर वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टाइम, ओके, और वी कैन से वंस देयर वाज अ टाइम, एक समय ऐसा था जब इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास. लैंड मास क्या होता है? जैसे यू लुक एट इंडिया, इट इज वन पीस. इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया देखो, इंडिया को देखा हमने, देखा उसको अंडमान आइलैंड्स, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास. बीच में ओशन आ गया, उनके सी आ गया, सेम लैंड मास का हिस्सा थे, मतलब जमीन का एक ही टुकड़ा थे. इंडिया और एंटार्क्टिका एक समय ऐसा भी था. जब उसने ये सोचा तो बड़ा उसको ताज्जुब हुआ कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या. आज देखो ये कितना दूर है, इट इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, एंड देयर वाज अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, when India and Antarctica were part of the same landmass, means you could go to Antarctica by the land route. अभी देखो उसे अंटार्कटिका जाने में क्या क्या यूज करना पड़ गया, कार, एरोप्लेन, शिप, एयर, लैंड, वाटर, शी हैड टू ट्रेवल बाय ऑल द थ्री. और एक वक्त ऐसा था जब ये एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे, इंडिया और अंटार्कटिका. अगर हम देखें उसको मैप पर, यू पीपल go and have a look at the map and you see, oh, Antarctica is so far away, oh, it's so far away, and look at this, India is here and Antarctica is thousands of kilometers away, and there was a time when they were part of the same landmass. So how, तो थोड़ा मतलब दिमाग हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को, यू नो, विल बी अ बिट, विल सी हाउ, कैसे कैसे हो गया ये कि एक का ही हिस्सा थे ये इतने पहले. ओके, सो दीज आर द इमोशंस जो उसने महसूस किए. जब वो पहुंच गई एंटार्क्टिका तो सबसे पहले पहुंचते ही उसे मिला रिलीफ, जर्नी इज ओवर, रीच द डेस्टिनेशन. दूसरा, प्रोफाउंड वंडर. वंडर किस चीज पे? इमेंसिटी पे, आइसोलेशन पे, इतना ह्यूज है और इतना आइसोलेटेड है, कट ऑफ है पूरी दुनिया से. तीसरा, जब उसने इस चीज को रियलाइज किया कि यार एक टाइम ऐसा भी था, उसने जहन में आई उसके बाद, एक टाइम ऐसा था जब इंडिया और ये एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे. ओके, सो